Hello, my enthusiastic learners. Welcome back to today's session. This is Aanchal, your learning buddy, and we are taking up SST for class 6, and the chapter is chapter number 5 of history, that is early kingdoms and republics, right? हम जानेंगे kingdoms के बारे में. Kingdoms means जो king के rule के अंदर आते हैं, and we'll talk about republics also where there was no role of kings, right? So basically we'll be covering about the sources, कहाँ से ये हमें चीज़ें पता चली हैं. Janpads and Mahajanpads we'll be talking about. We'll talk about Magad region and the Vajji confederacy, right? So no society, children, it can survive without any law and order, control and governance, right? कोई भी society हो, लोग हो, उनको कोई ना कोई रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके ही वो लोग पीसफुली रह सकते हैं. देयर शुड बी कंट्रोल ओवर देम एंड प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए. देन ओनली अ सोसाइटी कैन फंक्शन प्रॉपरली. सो देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द पीपल इनटू सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर. सो उस टाइम पे अर्ली टाइम पे ये नीड आई कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई तो सिस्टम चाहिए, गवर्नेंस के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए. This led to the emergence of states and governance system. इससे क्या हुआ, छोटे छोटे states बनने लगे, अलग अलग states बनने लगे और उनको govern करने का, administer करने का एक system तैयार किया गया, right? So about 2500 years ago, big kingdoms developed in the Ganga Valley. So around the Ganga river, जो गंगा वैली के आसपास का जो region था, वहाँ पे बड़े बड़े kingdoms develop हुए. Each had a well-defined territory and government. और हर एक kingdom का अपना एक well-defined territory थी, region थी और अपनी government थी, right? अपने लोग थे जो उसको govern किया करते थे. Some of these kingdoms later grew into powerful empires. और यही kingdoms आगे जाके कुछ kingdoms बहुत ही powerful empires बने, right? So what are our sources of this information? Our main source of information about this period are again the Vedic texts. जो वेदास में हमें जो informations मिली हैं, detailed informations मिली हैं, वो हैं हमारे sources, such as the Brahmins and the Upanishads and Buddhist texts. Buddhist stories होती हैं, जटाका tales आप लोग पढ़ते होंगे, right? उन सब चीज़ों से हमें information मिली है उस time के बारे में. They refer to the Janpads and Mahajanpads which existed in this period. So उसके अंदर Janpads और Mahajanpads का जिक्र है जिससे हमें उस period के बारे में information मिलती है, right? So now let's study about these Janpads and Mahajanpads. You have read earlier that the Aryans lived in villages, right? हमने पढ़ा है कि Aryans जो थे वो villages में रहा करते थे. A person's life revolved around the tribe, right? उनके tribe के around ही उनकी life revolve किया करती थी. A big change came around this time. Iron began to be used on a much larger scale. इस time पे लोहे का use बहुत larger scale में use होने लगा था. The thick forest of the Ganga plains had not allowed expansion in this region. अभी तक क्या हुआ था, जो गंगा गंगा वैली के अराउंड जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, थिक फॉरेस्ट थे, उसकी वजह से लोग अभी वहाँ पर रहने नहीं आ पाए थे. लेकिन जब आयरन ज़्यादा यूज़ होने लगा तो क्या हुआ, बट नाउ दीज आयरन टूल्स helped people to clear the forest where later bigger settlements developed, right? So iron tools के use की वजह से उन forest को clear किया गया और लोगों के रहने के लिए वहाँ पर काफ़ी settlements बनाई गई. The small tribes of the earlier period gave way to large kingdoms. उस टाइम की जो छोटी छोटी tribes थी वो अब बड़े बड़े kingdoms में बदल गई थी. These territories came to be called Janpads और इन्हीं territories को, इन्हीं regions को Janpads कहा गया, right? The larger and more powerful Janpads were called Mahajanpads. जो बड़े जनपद होते थे, ज़्यादा powerful होते थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था. There were 16 Mahajanpads in Ganga Valley in the 6th century BC. 6th century BC की बात की जाए तो उस टाइम पर 16 Mahajanpads थे in the Ganga Valley. They were named after the ruling or the most important tribe in the area. और उन महाजनपद्स के जो नेम हुआ करते थे, they were named after the ruling or the most important tribe in the area. जो ruling tribe थी या फिर उस टाइम की जो most important, most powerful tribe थी, उनके ऊपर उन जनपद्स के नाम रखे जाते थे.
ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल, हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल होती थी, विच वॉज जनरली फोर्टिफाइड, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता था क्योंकि वो उसकी कैपिटल हुआ करती थी। ह्यूज वॉल्स, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाता था, सिक्योर किया जाता था, ह्यूज वॉल्स ऑफ स्टोन और ब्रिक वर बिल्ट अराउंड दी सिटी, उस कैपिटल सिटी के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी। दिस वॉज परहैप्स टू रेजिस्ट अटैक्स बाय नेबरिंग किंगडम्स, जिससे कि जो नेबरिंग किंगडम्स हैं वो उन पर अटैक ना कर सकें, उनको उससे प्रोटेक्शन मिल सके उनकी कैपिटल को, राइट। सो ये जो महाजनपद थे ये बेसिकली मेनली 2 टाइप्स के थे, रिपब्लिक्स and monarchies, right? Let's study about the difference between the two. Republics, a republic Mahajanpad was ruled by a group elected by the common people. वहाँ पर राजा कोई नहीं होता था, right? वहाँ पर कौन लोग रूल किया करते थे? लोग खुद ही एक ग्रुप को इलेक्ट किया करते थे जो वहाँ का गवर्नेंस देखा करते थे, right? There was no king, वहाँ कोई king नहीं होता था। Decisions were taken by a majority vote, किसी भी चीज़ पर अगर कोई डिसीजन लेना होता था, कोई रूल बनाना होता था तो एक वोट की जाती थी और मेजॉरिटी जिस वोट को मिलती थी, जिस ऑप्शन को ज़्यादा वोट्स मिलते थे वो डिसीजन फॉलो किया जाता था। द शाक्यास एंड द लिच्छावीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स, उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स थी वो थी शाक्यास एंड लिच्छावीज, राइट। नाउ देयर वर मोनार्कीज ऑल्सो, राइट। The monarchical महाजनपद्स were ruled by kings. ये जो महाजनपद थे वहाँ पर king रूल था, वहाँ पर kings रूल किया करते थे। The king was very powerful. He had a large army and many sources of revenue, right? Kings की उस टाइम पे बहुत बड़ी armies होती थी और उनके revenue यानी पैसे के, इनकम के बहुत सारे sources हुआ करते थे। Kingship was hereditary, right? लेकिन जैसे कि राजा है तो नेक्स्ट राजा उसका बेटा ही बनेगा, बड़ा बेटा ही बनेगा। सो दिस किंगशिप इट वाज हेरिडिटरी। द किंग सन सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन। मगध, वत्सा, अवंती एंड कोसाला वर द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज किंगडम्स। सो ग्रेटेस्ट मोनार्कीज कौन कौन सी थी? मगध, वत्सा, अवंती एंड कोसाला। Now the Ashwamedha or the horse sacrifice ceremony was often performed by powerful kings. जो powerful kings थे उस टाइम पर वो एक ceremony या ritual perform किया करते थे जिसे अश्वमेधा कहा जाता था। Now what is this Ashwamedha? The king wishing to perform the ceremony set a horse to roam through the kingdoms of other rulers. जो king था जो इस ceremony को perform करता था वो क्या किया करता था? एक horse को फ्री छोड़ देता था किसी दूसरे राज्य में, किसी और किंगडम में अपने हॉर्स को भेज देता था। इफ अ किंग अलाउड दिस सेक्रेड हॉर्स टू पास थ्रू हिज टेरिटरी इट इंडिकेटेड दैट ही हैड एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ द फर्स्ट किंग। अगर जो दूसरे किंगडम में जब वो हॉर्स पास किया करता था तो अगर वहाँ का जो किंग था वो उस हॉर्स को आराम से पास होने देता था तो ये माना जाता था, वो इस चीज़ का इंडिकेशन था कि वो किंग जो जिस किंग ने वो हॉर्स भेजा है उसको अपने से सुपीरियर मानता है, राइट। बट इफ अ किंग स्टॉप्ड द हॉर्स, लेकिन अगर वो दूसरे किंगडम के जो किंग ने उस हॉर्स को स्टॉप कर देता था इट मेंट दैट ही वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट किंग एंड उसके बाद एक बैटल होता था, एक चैलेंज होता था बिकॉज द किंग वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज हिज सुपीरियर, राइट। सो दिस वॉज अश्वमेधा। इसके बाद क्या होता था? एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के एंड में देयर वाज अ ग्रैंड सेरेमनी, एक बड़ी सी सेरेमनी होती थी। किंग्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स वर इन्वाइटेड टू इट, जो नेबरिंग किंगडम्स के किंग्स थे उन सबको इन्वाइट किया जाता था। एंड द किंग हु वाज टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ किंग्स। जो किंग जीता था ही वाज एंटाइटल्ड एज द किंग ऑफ द किंग्स। एंड प्रीस्ट चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। प्रीस्ट जो थे उस किंग के ग्लोरी में, ऑनर में टेल्स गाया करते थे, कहानियाँ सुनाते थे। दे यूज्ड टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर, होली वाटर जो था उन किंग्स पर स्प्रिंकल किया करते थे। एंड इस सेरेमनी के एंड में उस हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। एंड एट द एंड ऑफ द सेरेमनी द हॉर्स वॉज सैक्रिफाइस्ड एज अ गिफ्ट टू दी गॉड्स। भगवान को उस हॉर्स की बलि चढ़ा दी जाती थी एट द एंड ऑफ ऑल दीज or this ceremonial procedure, right? This you can see is all the Mahajanpads at that time. So these red, these pink ones are the Mahajanpads, 16 Mahajanpads, and these green ones are the Janpads, right?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेशन एट दैट टाइम. सो लार्ज आर्मीज, अब जब किंग्स थे उनकी बड़ी बड़ी आर्मीज थी, तो उन आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा भी चाहिए होता था, राइट. सो लार्ज आर्मीज रिक्वायर्ड मोर मनी. Therefore, kings began to collect taxes on a regular basis. तो जो किंग्स थे वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने लगे. They appointed officers to collect taxes from people. कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जो लोगों से जाके टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे. मोस्ट पीपल वर फार्मर्स. अगेन जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो एग्रीकल्चर थी, ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे. सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. पैसे का जो मेन सोर्स था इनकम का वो एग्रीकल्चर ही था. The farmers gave 1/6 of their produce to the king. जो farmers थे अपने जितना भी वो प्रोड्यूस था उनका, उसका 1/6 जो अमाउंट था वो किंग्स को दिया करते थे. This was called भाग और शेयर ऑफ दी प्रोड्यूस. इसको भाग कहा जाता था या फिर प्रोड्यूस का शेयर जो किंग को जाता था. It was 1/6 of the total produce. During this time the farmers began to produce more from their land. So जो farmers थे इस टाइम पर उनकी अच्छी क्रॉप्स होती थी. This was because of two factors. दो reasons थे इसके. First, the iron plow came to be used on a larger scale. It was an improvement over the wooden plow. पहले wooden plow यूज़ किए जाते थे खेत्स को प्रिपेयर करने के लिए, लैंड्स को प्रिपेयर करने के लिए. And now iron plows were started being used. So उससे क्या होता था, उनका जो काम था वो ज़्यादा अच्छा हो गया था. Land became very nicely prepared because of these iron plows. Second factor was the practice of transplanting paddy. जो paddy rice crop जो थी उसको एक दूसरा तरीका यूज़ किया जाने लगा. They used to grow saplings separately. उसको saplings जो थे, baby plants थे, वो अलग से उगाया करते थे. And then planting them in the fields. और उन saplings को थोड़ा बड़ा होने के बाद fields में plant किया जाता था. इससे क्या हुआ, crop जो थी उनकी ज़्यादा अच्छी होने लगी. This ensured that many more plants survived. इससे ज़्यादा plants survive करने लगे and hence more grains were produced. जो पैदावार थी क्रॉप्स की वो ज़्यादा अच्छी हो गई. Increased production mean that जो increased production थी उसका मतलब क्या था कि किंग को ज़्यादा शेयर मिलता था. That king got a greater share of the revenue. जितना ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होगा उतना ही अच्छा किंग को भी उसका रेवेन्यू जाता था. There were other sources of revenue also. Craftsmen such as carpenters जो थे, potters, weavers, they paid taxes. ये सब भी taxes पे किया करते थे किंग को. Either in cash or kind or by offering free service to the king. या फिर कैश में पे किया करते थे या फिर कोई ना कोई फ्री सर्विस किंग को प्रोवाइड करके वो पे किया करते थे. There were also taxes on buying and selling of goods. खरीद बेच जो चीज़ों की होती थी उस पर भी किंग यूज्ड टू लेवी टैक्सेस. Now that was taxation. Now let's talk about trade at that time. Trade got a boost during this period due to introduction of money. Right? पहले क्या होता था, barter system चलता था, exchange of goods चलता था, right? लेकिन जब money introduce हुई उसके बाद क्या हुआ, जो trade था उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ. इट गॉट अ बूस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. अंटिल दिस टाइम ट्रेड हैज़ बीन कैरिड थ्रू बार्टर. नाउ कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विच वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, उन पर कुछ सिम्बल्स बने होते थे, पंच मार्क्ड होते थे, वो कॉपर और सिल्वर के बने हुए कॉइन्स यूज़ होने लगे. दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड. इसकी वजह से जो ट्रेड था उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ, राइट. इनलैंड ट्रेड वॉज ब्रिस्क, मतलब अपना ही विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो ट्रेड था वो काफ़ी क्विक था, बहुत एक्टिव था. गुड्स वर सेंट फार एंड वाइड. गुड्स जो थे वो दूर भी भेजे जाते थे. बिम्बिसारा द किंग ऑफ मगध बिल्ट रोड्स एंड ब्रिजेस. जो मगध का फर्स्ट किंग था बिम्बिसारा, उसने बहुत सारी रोड्स बनाई, राइट, जिससे जो ट्रेड था उसमें भी इंक्रीज हुआ, राइट. ही बिल्ट रोड्स एंड ब्रिजेस, कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई throughout his empire. This encouraged trade. उससे ट्रेड में बढ़ोतरी हुई. Besides land routes के अलावा trade was carried out through sea routes. Sea routes भी बनाए गए, right? Sea routes से भी trade था जो चलने लगा. The main articles which were traded, कौन से articles थे? Silk, muslin, silk और muslin cloth थे, perfumes, ivory. These were the main items which were involved in the trade. Now let's talk about the towns at that time.
विलेजेस दैट ग्रू इन साइज बिकेम टाउन्स, जो विलेजेस थे जो एक्सपैंड हुए वो टाउन्स बन गए. टाउन्स ऑल्सो ग्रू सेंटर्स ऑफ टाउन्स ऑल्सो ग्रू अराउंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट. जहाँ पर ट्रेड एंड क्राफ्ट ज़्यादा था उसके अराउंड जो थे वो टाउन्स ज़्यादा डेवलप हुए. समटाइम्स आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन केम टुगेदर टू वर्क एज अ ग्रुप. जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो एज अ ग्रुप एक साथ आ जाते थे काम करने के लिए. सो दीज प्लेसेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स. तो वो उन्हीं लोगों का एक टाउन बन जाया करता था. उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति एंड चंपा वर सम important towns of this period, right? Now let's talk about society. यहाँ पर भी जो सोसाइटी है उसको वर्ण में बांटा गया था. The people were grouped into varnas. 4 varnas थे: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. These varnas were decided on the basis of birth, right? पहले जैसे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्नास डिसाइड होते थे, इस टाइम तक आते आते बेसिस ऑफ बर्थ पर ही ये वर्नास डिसाइड होने लगे. जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं वही वर्ण आपका माना जाता था. दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, दैट पर्सन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण. अगर आप शूद्र फैमिली में बॉर्न हुए हैं देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ शूद्र. So people of different varnas, they performed different tasks. जो ब्राह्मण्स थे, they were believed to be learned people. तो उनका क्या काम था? They were expected to teach the Vedas. वो लोगों को वेदास पढ़ाते थे. And they used to perform religious rituals and sacrifices. जो होते थे religious practices जितनी होती थी वो सब ब्राह्मण्स किया करते थे. Now the second varna was Kshatriyas. The Kshatriyas were warriors and fought wars. क्षत्रियाज वॉरियर क्लैन को माना जाता था. द क्षत्रियाज देन द वैश्याज वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. जो फार्मर्स थे, ट्रेड्समैन थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो सब वैश्य वर्ण के अंदर आते थे. एंड ओनली द फर्स्ट 3 वर्नास को स्टडी द वेदास एंड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. जितने भी ये वेदास थे इनको पढ़ना सिर्फ ये जो पहले 3 वर्ण हैं यानी ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज एंड वैश्याज, ओनली दे वर अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. शूद्रास जो कि चौथा वर्ण है उनको ये अलाउड नहीं था. द शूद्रास दे हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स. जो ये बाकी के 3 वर्ण हैं उनके लोगों को सर्व करना पड़ता था शूद्रास को. इन एडिशन देयर वाज अनदर ग्रुप ऑल्सो दैट इज द अनटचेबल्स. उनसे भी नीचे एक लोगों का ग्रुप माना जाता था जिन्हें अछूत माना जाता था, अनटचेबल्स माना जाता था, राइट? एंड they had even a lower rank in society than the शूद्रास. और वो शूद्रास से भी उनकी जो रैंक थी वो उनसे भी नीचे थी, जिन्हें अनटचेबल्स कहते थे, राइट? द बर्थ बेस्ड जो वर्ण सिस्टम था, बर्थ बेस्ड, वॉज डिसलाइक्ड बाई पीपल ऑफ द लोअर वर्नास. जो लोअर वर्ण के लोग थे उनको ये बहुत नापसंद था. ये जो सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था बर्थ बेस्ड, उन्हें ये काफ़ी नापसंद था. ओवर टाइम द वर्ण सिस्टम बिकेम मोर एंड मोर रिजिड. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत रिजिड बन गया. प्रोफेशंस बिकेम हेरिडिटरी एंड देयर वर सेपरेट रूल्स फॉर ईच वर्ण. जो प्रोफेशंस थे, इफ़ अ पर्सन इज़ अ स्वीपर तो उसका बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली स्वीपर ही बनेगा, राइट? एक वॉरियर है तो उसका बच्चे को वॉरियर ही बनना है. सो जो प्रोफेशंस थे वो हेरिडिटरी हो गए. अ पर्सन कुड नॉट चूज हिज प्रोफेशन. द वर्ण सिस्टम इट बिकेम वेरी रिजिड एंड देयर वर सेपरेट रूल्स फॉर ईच वर्ण. हर वर्ण के लोगों के लिए जो रूल्स थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे, राइट? Now let's talk about Magad Empire, right? Magad was a monarchy ruled by a king. Monarchy means जो king rule होता है. Magad ऐसी एक जगह थी. During this period, Magad period में it was the most powerful महाजनपद, and this was due to many factors, right? So जो Magad था it was उस period का सबसे powerful महाजनपद था. So ये पता लगाते हैं कि क्या factors रहे जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा powerful था. Magad was located in the Gangetic basin where the soil was very fertile and yielded good harvest, right? जो गंगा के आसपास का जो रीजन था, Gangetic basin जो था, राइट? वहाँ पर जो लैंड था वो बहुत फर्टाइल था और वहाँ अच्छी प्रोड्यूस हुआ करती थी. वहाँ पर गुड हार्वेस्ट, गुड क्रॉप्स हुआ करती थी. सो दैट इज़ वाई जो मगध था उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, फेवरेबल थी, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल था. The land tax was high and it provided a large income for the kingdom. Land tax काफ़ी high था
जिससे कि किंग को एक बड़ी इनकम, अच्छा रेवेन्यू मिलता था फ्रॉम द लैंड. दिस enabled द किंग्स टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी. और इस अच्छा पैसा जो मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, उसकी वजह से जो किंग्स थे वो बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन कर पाते थे. राइट, दिस वॉज वन फैक्टर. एंड द नेक्स्ट वन वॉज द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड मगध विथ टिम्बर एंड एलिफेंट्स. जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड, राइट, वहाँ पर टिम्बर, लकड़ी बहुत अच्छी मात्रा में उनको मिलती थी और उस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थे. राइट, सो टिम्बर वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेज, फोर्ट्स एंड चैरियट्स. वुड यूज़ की जाती थी, टिम्बर यूज़ की जाती थी चैरियट्स बनाने में, हाउसेज बनाने में, फोर्ट्स किले बनाने में. राइट, और जो एलिफेंट्स थे उनको आर्मी में यूज़ किया जाता था फॉर द बैटल्स. मगध हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर. वहाँ पर आयरन का ओर बहुत था. राइट, उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता था. आयरन वॉज यूज टू मेक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ वॉर. सो आयरन से टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए जाते थे. राइट, सो वहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में था. इसकी वजह से भी मगध एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मगध वॉज प्रोटेक्टेड बाय नेचर. ये जो मगध रीजन था वो नेचुरली प्रोटेक्टेड था. कैसे? द ओल्ड कैपिटल ऑफ राजगृह, जो उसकी जो कैपिटल थी मगध की पहली कैपिटल राजगृह, जिसको जो आज के टाइम पे राजगीर के नाम से जानी जाती है, वो सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स. वो जो हिल्स थे वो उस मगध रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, नेचुरली प्रोटेक्ट किया करते थे. द न्यू कैपिटल, सो जो नई कैपिटल थी उनकी पाटलिपुत्र, जो आजकल के टाइम पे पटना है, दैट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग रिवर गंगा. वो रिवर गंगा के अलॉन्ग थी, तो रिवर जो थी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी फ्रॉम द अटैक ऑफ अदर किंगडम्स. सो दीज वर नेचुरल बैरियर्स. ये जो ये रिवर गंगा थी और जो वो हिल्स थे अराउंड मगध रीजन, वो दे एक्टेड एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट एनी अटैक ऑन द किंगडम. किंगडम पर कोई अटैक से उनको बचाया करते थे. मगध हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद अदर रीजन्स. प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड ऑल्सो हेल्प द किंग टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी. राइट, जो ये बड़े किंगडम से अच्छा जो ट्रेड था उनका, उससे जो रेवेन्यू मिलता था, उसकी वजह से भी किंग्स को बड़ी आर्मीज मेंटेन करने में हेल्प होती थी. देन मगध वॉज रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स सच एज बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा. दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज. जो उनके रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा दे वर वेरी पावरफुल और वो हमेशा अपने रीजन को, लैंड को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते रहते थे. मगध रिमेन्ड पावरफुल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. 100 साल, कई 100 सालों तक जो मगध था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत पावरफुल रहा. द शिशुनाग एंड नंदा किंग्स मेड द किंगडम स्ट्रॉन्ग. जो आगे जो शिशुनाग्स थे एंड जो नंदा किंग्स थे, उन्होंने भी इस किंगडम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. एंड इट कंटिन्यू टू रिमेन पावरफुल अंडर द रूल ऑफ मौर्यन किंग्स. मौर्यन किंग्स जब आए, उन्होंने भी इस मगध को दे मेड इट क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वज्जी कॉन्फेडरेसी. कॉन्फेडरेसी क्या होती है? जब कुछ ग्रुप्स मिलकर दे unite together to form a confederacy. The Vajjis were a confederacy of many clans, of whom the Licchavis were the most powerful. Licchavis were the republics. हमने बात किया था ना इसके बारे में. It was the most powerful republic. So बहुत सारी जो ये clans थे, groups थे, वो unite हो गए, एक साथ मिल गए. They combined together to form a confederacy known as Vajjis, right? So जिनमें से Licchavis was the most powerful group. Their capital was Vaishali, which is present day Bihar. It is in present day Bihar के अंदर है वैशाली. So Vajji confederacy, Vajjis की capital क्या है? वैशाली. You have read earlier in this lesson that Licchavis were a republic. They were not ruled by a king. Decisions were taken by the people themselves. वो वोट करते थे, जो मेजॉरिटी वोट्स आते थे उसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेजर डिसीजन हैड टू बी टेकन, पीपल गैदर्ड एंड डिस्कस्ड व्हाट वाज टू बी डन. लोग इकट्ठे होते थे और खुद ही डिसाइड किया करते थे कि क्या डिसीजन लेना जाना चाहिए. राइट, लिच्छावी रिपब्लिक रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम तक वहाँ पर कोई किंग रूल नहीं था. फाइनली अजातशत्रु कॉन्कर्ड दिस महाजनपद. ये जो लिच्छावी महाजनपद था काफ़ी टाइम तक इंडिपेंडेंट था, बट फाइनली उसको अजातशत्रु ने कॉन्कर कर लिया और फिर इट बिकेम अ monarchy. Clear? I hope you have understood about the kingdoms and republics of that time.
So now you can go through this glossary and let's take up the quick review of the chapter. There were many Janpads and Mahajanpads. They were either republics, that is no king rule, or there were monarchies. A monarchical Mahajanpad was ruled by a king. He was very powerful and they had a large army. There were many sources of revenue. Farmers, craftsmen, traders, they all gave taxes to the king. Overland and overseas trade prospered. It flourished during this period and many towns emerged. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, they were the 4 Varnas, and each one, people of each one performed a specific task. Magad was powerful monarchy. It grew powerful because of various factors. We have done that, and the Licchavis formed the most powerful republic at that time, and their capital was Vaishali, right? So now let's begin with our exercises, children. You have to darken the circle of correct option in the OMR sheet. You are going to fill the bubbles, correct bubbles yourselves. Now number 1, there are dash Mahajanpadas in the Ganga Valley in the 6th century BC. Kitne the Mahajanpad? There were 16 Mahajanpads in the 6th century BC. Right? Number 2, dash began to be used on a much larger scale. किस चीज का यूज बढ़ा था इस टाइम पे? आयरन का. So iron. Number 3, the Varnas were based on. So किस basis पर ये जो Varnas थे decide होते थे? On the basis of birth, right? Number 4, the farmer gave dash of their produce to the king, which was called bhag. तो कितना part दिया करते थे farmers? They gave 1/6 of their produce to the king. 1/6. Right? Number 5, Magad and dash are examples of monarchical Mahajanpads. So Magad and Vatsa, right? Magad, Vatsa, Avanti, they were examples of monarchical Mahajanpads. Clear? Now let's come to fill in the blanks, children. Number 1, the 4-fold division of the society was known as society. जो fold division था उसको क्या कहा जाता था? Varnas, right? Right. Now number 2, dash was the first capital of Magad. Magad की first capital कौन सी थी? Rajgriha. Number 3, the capital of Vajji. Vajji confederacy की capital कौन सी थी? Vaishali. Right. Number 4, dash with iron edges were introduced as farming tools. So plows, iron plows were introduced. Number 5, the first ruler of Magad empire कौन था? Bimbisara. Number 6, Magad and dash became the most powerful monarchical Mahajanpads. So Magad and Avanti. Clear, everyone? Now let's see true and false. In Ashwamedha, a cow was released. No, they released a horse. So this is false. Number 2, the republics were ruled by a king. क्या republics में king rule था? No, they were the monarchical Mahajanpads. So this is false. Patliputra is Patna nowadays. Yes, it is true. Number 4, barter system continued with the increase in trade. No, barter system, it subsided and people started using money for the trade. False. Number 5, the Varna system was much liked by the people. No, the people, they disliked this classification based on their birth, right? So this was false. People disliked this. So now these are detailed question and answers. You have to attempt yourself, children. We have already gone through them while going through the chapter, right? So with this we come to an end of this chapter. I hope you are clear with the early kingdoms and the republics of that time. I'll see you in the next chapter, children. Till then, you all stay blessed and have a good time. Bye-bye.